ओके गुड, चलो चालू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं। इन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द हार्ट। ओके, यस, मैं इंडोर में आ गया, करेक्ट अनवय। This part, I think we have seen how the control, what is the control of heart. So basically heart is under the control of middle oblongata. So we have two outflows. One is the sympathetic and the other one is parasympathetic. Sympathetic nerves with the help of adrenaline will stimulate the activity of the heart, whereas parasympathetic nerve with the help of acetylcholine, बराबर है ना? ठीक है, with the help of acetylcholine will help to reduce the activity of the heart, meaning it's going to relax the heart. So adrenaline with the help of sympathetic nerves will increase the heart rate, whereas here with the help of acetylcholine the parasympathetic nerve will decrease the heart rate. मतलब ये inhibitory का काम करता है. This is known to reduce your heartbeat, this is known to increase your heartbeat. And that is why adrenaline is considered as the hormone for fight and flight. बराबर है? Whenever we are under any stress or tension, that time this particular hormone will be released that stimulates the heart, and thus the activity will start. So adrenaline is considered as the emergency hormone, not the acetylcholine. वैष्णवी, ओके, क्योंकि एड्रेनालिन का काम होता है टू स्टिमुलेट द हार्ट एक्टिविटी, इसके लिए एड्रेनालिन इज कंसिडर्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन. चलो, अभी ये पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था. नाउ ड्यूरिंग, हाँ सर डन, ओके. Thank you. Okay, so now during inspiration the heart rate will always increase. जब inspiration होता है तो heart rate बढ़ता है, and during expiration the heart rate is known to reduce. ये natural mechanism है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as sinus arrhythmias. Okay, this is known as the sinus arrhythmia, which is of course, as I said, is a natural mechanism जो होता है, जो हम लोगों को पता नहीं चलता है, but this is how the mechanism is taking place. अभी inspiration के time पे heart rate क्यों बढ़ता है? Because when we are taking the air in, we are taking in oxygen, so the distribution of oxygen is must. इसके लिए heart rate बढ़ जाता है, मतलब beating of the heart will increase. As I said, हम लोगों को वो direct पता चलता नहीं है. We call this as sinus arrhythmias, right? So the condition is known as the sinus arrhythmias. ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. I'm just an additional information. Don't write this. Now, the next most important part of the heart is to understand the type of circulation. क्योंकि हार्ट में दो अलग अलग टाइप के सर्कुलेशन होते हैं. If you remember, मैंने पूरा सर्कुलेशन आपको हार्ट का बताया, जिसमें how it starts from the body parts. बॉडी पार्ट से वेना कावा से वो जाएगा किधर? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से ब्लड विल एंटर इन द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ब्लड विल गो टू द, yes, blood will go to the pulmonary artery. Pulmonary artery से it will be taken to the lungs. From lungs the blood will be taken again to what? To the pulmonary vein. Pulmonary vein से ये किधर आएगा? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से ये किधर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से it will go to the aorta, और aorta से again it goes to the body parts. करेक्ट? तो ये पूरा सर्कुलेशन है इस तरीके से, राइट? तो यहां से लेकर यहां तक का जो सर्कुलेशन है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड एंड दिस वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो ये पूरा सर्कुलेशन है. सो मीनिंग देयर इज सर्कुलेशन सीन बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, एंड देयर इज सर्कुलेशन सीन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड द हार्ट. Okay, so that circulation we are going to understand. तो ये दो टाइप का सर्कुलेशन आता है. One is known as the pulmonary circulation and the other one is known as this systemic circulation. Now, as we all know that human heart has 4 chambers.
and because it has 4 chambers, so naturally it has 4 chambers, and the type of circulation which we have here is known as the double circulation. Double iske liye because it has 2 different circulations. Between heart and lungs is called as pulmonary circulation. Between heart and body parts is known as the systemic circulation. Okay, because the blood passes twice through the heart. Twice कैसे? एक बार ब्लड आएगा वेना कावा से अंदर, दूसरी बार ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन से अंदर. समझ में आ रहा है? And as the blood passes through the heart twice, therefore called as the double circulation. Are you getting this? Yes, sir. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड बाहर जाएगा, वेना कावा से अंदर गया, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर गया, पल्मोनरी वेन से अंदर आया, एओर्टा से बाहर गया. हो गया 2 बार, यानी 2 बार एंट्री हुआ, 2 बार एग्जिट हुआ. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन. तो इस तरीके से ये डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है. And of course, as I said, that there are 2 different circulations in, one is the pulmonary and the other one is systemic. Therefore, also it is known as the double circulation. So there are 2 routes. कौन सा? One is known as the pulmonary route, which is related to the lungs. ठीक है? So circulation between heart and the lungs. Okay. Yes. And then there will be a second route which is related to, so this is circulation between heart and lungs, and the second one is the systemic, which is related to the body parts, where the circulation is between heart and the body parts. Systems होते हैं, इसके लिए उसको बोला गया है systemic circulation. Okay, तो ऐसे 2 अलग-अलग रूट्स आएंगे पूरे ये सर्कुलेशन के अंदर. Yeah. Now when we talk about and when we discuss the pulmonary circulation, तो इसमें क्या होता है? Previous slide, ये लो previous slide. Finished? श्रुति हिंग मेरे हो गया क्या? हाँ? Yes, sir. हाँ, सब लोग आ गए क्या? सानिका, अनन्या, सब लोग आ गए क्या? Yes, sir. I am there. कौन? सानिका is there. हाँ. अनन्या, लोहिता. Yes, sir. आ गए ना तुम लोग? सानिका घोड़के भी आ गई. हाँ, सानिका घोड़के ने अभी हाथ ऊपर किया. अभी आई क्या सानिका तू? सानिका घोड़के अभी आई. अनन्या की आवाज नहीं आ रही है, वही तो मैं बोल रहा था, अनन्या गायब है. अनन्या है ही नहीं मीटिंग में, भाग गई. एब्सेंट है अनन्या आज, सो गई शायद वो. चलो एनीवे, देखो पूछो उसको, कॉल करो, किधर है? अच्छा स्टार्टिंग से ही है, ठीक है ठीक है. दिया तेरा हाथ ऊपर कर. और 2 लोग हैं. हाँ, महक. अनन्या को कॉल करो. अनन्या किधर है? अनन्या हाजिर हो. देयर इज वन मोर पर्सन. ओके, सानिका घोड़ के अपना हाथ नीचे करो. गुड. ओके चलो, ये अनन्या लाठी. क्योंकि वो दोपहर के लेक्चर में थी बुशरा, अभी ये लेक्चर में गायब हो गई. गुड, थैंक यू सानिका. वालिम्बे. ओके चलो, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थोड़ी सी बात करते हैं. पल्मोनरी सर्कुलेशन, yes yes, you all are there since afternoon, I know. No problem सानिका. गुड आदित्य, थैंक यू. पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? इट्स अ सर्कुलेशन सीन between the lungs and the heart.
So the course of blood from right ventricle to the left atrium of the heart through the lungs is called as pulmonary circulation. ये देखो आ गई अनन्या. अनन्या किधर गई थी रे? सर वो घर पे गेस्ट आए थे तो हाँ तो क्या सर कर रही मेरे थी? को चाय सर बना मेरे रही? को कम से कम 6 जनों के मैसेजेस है, अनन्या सर तेरे को याद कर रहे हैं, जल्दी ज्वाइन। मुझे लगा तू सो गई. नहीं सर, सर मैं स्कूल से आने के बाद सोना था मुझे, लेकिन 2 बजे लेक्चर था। आज हम लोग 3 घंटा बैडमिंटन खेल रहे थे। बाबा बाबा बाबा, ऐसा कभी भी बैडमिंटन मत खेलो रे, तबीयत खराब हो जाएगा. नहीं सर, हम खेलते हैं स्कूल में, पर ऐसे 3 आवर स्ट्रेच में कभी नहीं खेलती मैं, लेकिन आज मेरे को गुस्सा आया था तो मैंने पूरा गुस्सा बैडमिंटन पे। चलो अभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा ना उधर स्कूल में और टाइम मिला तो मैं खेलूंगा आप लोगों के यस साथ सर, बैडमिंटन. श्योर सर, हम है ना? प्रो हैं सर, आपके साथ खेलेंगे सर, मजा आएगा। हाँ मैं नहीं हूँ इतना प्रो, थोड़ा थोड़ा ही खेलता मैं हूँ. सिखा दूंगी सर हम दोनों हाँ खेलेंगे। हाँ मैं चले, सिखा नो प्रॉब्लम. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में द ब्लड इज एंटरिंग इनटू द लंग्स थ्रू द राइट वेंट्रिकल. ठीक है, ये राइट साइड है हार्ट का, ये लेफ्ट साइड है. सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है? ब्लड जा रहा है लंग्स के अंदर, और लंग्स से फिर से ब्लड इज एंटरिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सर्कुलेशन बन गया. सो देयर इज अ सर्कुलेशन व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, सो वी कॉल दिस एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? लिख लो इसको फटाफट, आप लोगों को पता है ये बेसिकली. Shall we? Yes, sir. Okay. So this diagram is a beautiful explanation of how this. नहीं ड्रॉ मत करो आदित्य, ड्रॉ मत करो कुछ भी बाबा, इसमें टाइम बहुत जाएगा. तो ये डायग्राम अगर आप देखते हो ना तो इसमें क्लियरली पता चलेगा. सो ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, किधर है राइट वेंट्रिकल? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. तो यहां से फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल लाइक दिस इज एंटरिंग इनटू द लंग्स. जो ब्लड इन द लंग्स में आ रहा है वो कौन से टाइप का ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड. एंड हु इज कैरिंग दिस? इट इज बीइंग कैरिड बाय पल्मोनरी ट्रंक. But immediately the pulmonary trunk will divide to form pulmonary arteries, so that each artery will enter in each lungs. ठीक है, so right artery will enter right lung, left artery will enter in the left lung. तो इस तरीके से ये हो जाएगा. Now moment the blood enters in the lungs, the exchange of gases will take place within the lungs with the help of alveoli, because of which the deoxygenated blood will be made oxygenated, and from the pulmonary veins now the blood enters in the left atrium. तो आप यहां से देख सकते हो पीछे से इधर आ रहा है. ठीक है, so it is entering into the left atrium which is going to be an oxygenated blood. ठीक है, and it is carried by the 2 pair of pulmonary veins. राइट, तो 2 पेयर होते हैं पल्मोनरी वेन्स के. 1 पेयर विल कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स, राइट लंग. 1 पेयर विल कैरी लेफ्ट लंग. 1 पेयर विल कैरी फ्रॉम द राइट लंग, एंड दैट इज हाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल री एंटर इन द हार्ट. मतलब जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड होके वापस अंदर आएगा. So a short circulation seen between the lungs and the heart. Okay. So this is known as pulmonary circulation. निकल रहे सर? चलो bye bye. Take care. Okay. एओर्टा से क्या आएगा श्रावणी? किधर? अभी हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रही है ना बेटा. एओर्टा इज रिलेटेड टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन ना. किधर कहां घुस रही है? ये हो गया, ये समझा आपको? पल्मोनरी सर्कुलेशन इज क्लियर.
Okay, can you tell this slide again? I was disconnected. अच्छा, स्नेहा बांगर, ध्यान दो. फिर से एक बार समझा रहा हूं, and I'm going to take a different ink so that you know थोड़ा सा और clearly नजर आए. Okay, now what happens here is that the blood from this is right side and this is left side. ये left है. So blood from the right ventricle will be carried through the pulmonary trunk into the lungs. So pulmonary trunk will divide to give rise to pulmonary artery so that the blood will be carried inside the lungs, which is deoxygenated blood. Where inside the lungs, it comes in contact with the, it basically divides to form capillaries so that it will surround the alveoli, and thus the exchange of gases will take place between the alveoli and the capillary, and the blood which is deoxygenated will be made oxygenated. Now this oxygenated blood will be carried through 4 pulmonary veins, 2 pairs of pulmonary veins, each from one side. 1 pair from the right, 1 pair from the left. And this blood which is oxygenated now enters into the left atrium. मतलब ब्लड जाएगा लंग्स से राइट वेंट्रिकल से, और ब्लड लंग्स के अंदर, लंग्स से वापस हार्ट के अंदर आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम. सो दिस इज हाउ द एंटायर सर्कुलेशन इज फॉर्म. A short circulation between the heart and the lungs is known as pulmonary circulation. यहां तक ठीक? Yes, the boys and the girls. Done, sir. Okay, chalo, good. Next. Now, ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन. सिमिलरली सिस्टेमिक सर्कुलेशन रहेगा. अभी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? So naturally, the blood which is now oxygenated from left atrium will enter in the left ventricle, so that from the left ventricle, meaning left ventricle say, this blood will be carried through the aorta to all the parts of the body like this, where the body's cells will utilize the oxygen and will release carbon dioxide. So the oxygenated blood will be made deoxygenated, and then this deoxygenated blood will be carried to the right atrium. मतलब exactly opposite, उल्टा हो जाएगा. Left ventricle से oxygenated blood through aorta will be carried to all the parts of the body. ये brain है, तो ये brain को भी carry होगा. तो ऊपर के body part से आएगा superior vena cava, inferior vena cava, lower parts of the body. And then this deoxygenated blood, which is made deoxygenated in the tissues, will be carried through the vena cava into the right atrium. So how do we write this? The course of blood from left ventricle to the right atrium of heart through body organs is a systemic circulation. Okay? जैसे अभी वापस अगर हम लोग देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कैरिड थ्रू द एओर्टा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, वेयर इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी मेड डीऑक्सीजनेटेड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द body organs will be carried to the right atrium through vena cava, that is superior vena cava and inferior vena cava, and the blood is going to be deoxygenated. ठीक है? And because there is circulation seen between the heart and the body system, therefore we call this as systemic circulation. And since we see 2 different types of circulation, that is pulmonary circulation and systemic circulation, therefore we call this as the double circulation. Okay? समझ में आया? Yes, sir. चलो, good. आगे बढ़े. लास्ट स्लाइड में क्या चाहिए वैष्णवी तुझे? ये सर रुको ना. हाँ, हाँ तो क्या जोया लिखो ना, क्या करेगी?
फोटो निकालेगी, फोटो निकाल। हो गया? हाँ चलो अभी इसको कैसे लिखोगे देखो, आप अपने तरीके से लिखो इसको। डन सर। नो सर। क्या सबका? डन सर। डांसर। ओके, चलो थर्ड इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन आता है, दैट्स कॉल्ड एज द कोरोनरी सर्कुलेशन। अभी कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को कि हार्ट इज अ ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, सो नेचुरली इट विल हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई। इसको अपना खुद का एक ब्लड सप्लाई रहेगा, right? So naturally that blood supply to the muscles of the heart will be with the help of coronary arteries. So coronary arteries will carry, अभी coronary artery कहाँ से develop होता है? It develops immediately. Hello, can you hear me? यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, okay. So coronary artery आएगा कहाँ से? From where the coronary artery will come? So it basically arises from the base of the aorta. एओर्टा के बेस से अराइज होगा, एंड देन दिस कोरोनरी आर्टरी विल गिव ब्लड सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द हार्ट, सो दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। कोरोनरी आर्टरी इज द नेम ऑफ द आर्टरी व्हिच इज गिविंग ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ओके, ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। Now this oxygenated blood will be distributed to all the cells, where the cells will utilize the oxygen and will start releasing what? They will start releasing deoxygenated blood. So this deoxygenated blood from the coronary veins will now enter into the right atrium. So coronary veins which join to form the coronary sinus then eventually opens into the right atrium. करेक्ट? तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग्स देखे थे, वन फॉर द सुपीरियर वेना कावा, अनदर फॉर इंफीरियर वेना कावा, एंड द थर्ड वन इज कोरोनरी साइनस। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा कोरोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। दिस इज अ सर्कुलेशन वेयर द ब्लड इज गिवन और ब्लड सप्लाई इज गिवन टू द हार्ट मसल्स। श्रावणी, okay, muscles of the heart are given blood supply here. कोई तो भी आया है, भक्ति आई है, भटकी भक्ति आई भटक के। ओके, सो नाउ थोड़ा ध्यान दे इधर श्रावणी। From the base of the aorta there is one artery which arises known as coronary artery, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, known as coronary artery. No, गौरव रुक जरा, मैं बोलता हूं तुझे। अभी अराइज किधर से हुआ गौरव? इट इज अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा, बराबर है? मतलब अराइज कहां से हुआ है? फ्रॉम द मेजर वेसल, ग्रेट वेसल। यस और नो? गुड। अब ये कैरी कौन सा ब्लड कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा? इनटू द कोरोनरी, इनटू द कार्डियक मसल्स. So it will enter, meaning these blood vessels will start giving blood supply to the muscles of the heart. Now muscles of the heart are made up of cells, so these cells will start utilizing this oxygen present in this blood and will start releasing carbon dioxide. तो blood कैसा बन जाएगा? Deoxygenated. Now natural mechanism है, arteries रहेंगे, arteries will divide to form arterioles, so coronary arterioles. फिर coronary arterioles will divide to form coronary capillaries. Coronary capillaries will rejoin to form coronary venules.
coronary venules will rejoin to form coronary vein, and this coronary vein comes out from the heart from different regions, and all these veins, majorly right and left, will come together to form coronary sinus. And this coronary sinus now opens into the right atrium. तो राइट एट्रियम को अगर आप देखोगे, सपोज वी हैव दिस राइट साइड, these are the two atria, this is how the ventricle is. तो इसको इधर एक ओपनिंग रहेगा, इधर एक ओपनिंग रहेगा, and somewhere here or somewhere here in this region there will be an opening. Okay, so superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus. Coronary sinus क्या कैरी कर रहा है? Deoxygenated blood, जो कहां से आया है? From the muscles of the heart only. श्रावणी समझा? हाँ, तो इसका मतलब गौरव, it is not entering, coronary vein is not entering in the great vessel, joining the great vessel. Instead, it is directly joining the atrium. Correct? Right atrium के अंदर सीधा ओपन हो जाता है. So this is the only vein which directly opens into the right atrium. बाकी सारे बॉडी के वेन्स किसको ज्वाइन करेंगे? इधर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. ठीक है? So this is known as coronary circulation. But coronary circulation is not the part of double circulation. इतना याद रखो. ये हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं. डबल सर्कुलेशन में दो ही आएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. कोरोनरी सर्कुलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन. सर ये पॉइंट्स में सेंटेंस बना के बताओ ना. अरे बाप रे, कैसे? सेम ना, जैसे मैंने बताया वैसे ही. अभी जो मैं इसलिए मैं बात कर रहा था तो स्लोली बात कर रहा था ना. सो इट इज लाइक coronary artery which arises from the base of the aorta carries oxygenated blood to the cardiac muscles, where muscles will utilize this oxygen and will release carbon dioxide to make that blood deoxygenated. Deoxygenated blood from the coronary veins will be carried to the will be carried by coronary veins, and these coronary veins joins to form coronary sinus, which eventually opens into the right atrium. ऐसा. अब ये पता नहीं कैसे लिखोगे आप. Excuse me, sir. Yes. Sir, in the slide of systemic circulation, it was written that except lungs. So what does it mean? क्योंकि लंग्स को जाता नहीं है ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड सप्लाई. लंग्स को ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है? पल्मोनरी आर्टरी ना. Yes, sir. हाँ, तो एओर्टा से ब्रांचिंग नहीं हो रहा है उधर. ठीक है? Yes, sir. Got it. Good. Sir, heart attacks are due to blocking in coronary arteries only, right? Yes, correct. कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया. जैसे भी ये डायग्राम में देख इधर सामने, सपोज यहाँ पे ये वाले आर्टरी में ब्लॉक हो गया ना, तो इधर का आगे का ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गया ना. सो दिस एंटायर मसल विल गेट डैमेज्ड. सो दैट्स कॉल्ड एज द हार्ट अटैक. सपोज इधर अगर ब्लॉक हो गया तो ये पूरा मसल डैमेज हो जाएगा, बिकॉज ब्लड सप्लाई इन दैट रीजन विल स्टॉप. ऐसा रहता है. सो दैट्स कॉल्ड एज द हार्ट अटैक. हाँ, दैट इज बेसिकली डिपोजिशन होता है उसमें. Yeah, deposition of cholesterol crystals, hardening of the blood vessels because of the coronary arteries, because of excess presence of say minerals. तो उसकी वजह से होता है ये. यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है. कॉमनेस्ट कॉज इज एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको. मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल कॉजिंग द ब्लॉक. यस, चलो हो गया. डन. आगे बढ़े. Done, sir. Yes, sir. ठीक है. सो ये हो गया हमारा सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द हार्ट बीट एंड द पल्स. हाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली द हार्ट बीट इज. अभी इसमें ना बहुत बेसिक दिया है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि एग्जैक्टली कैसे होता है. हार्ट बीट बेसिकली व्हाट इट इज, नथिंग बट द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. ठीक है? जो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज हार्ट बीट, व्हिच विल हैव ऑलवेज हैव वन सिस्टोल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड वन डायस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन. लेकिन किसका सिस्टोल और किसका डायस्टोल वो समझना जरूरी है. पहले ये एक सेंटेंस लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं.
हो गया? Done, sir. ओके, नाउ द हार्ट ऑफ हेल्दी पर्सन क्या हो गया? हाँ लिख, अद्वय का वाक्य। हो गया? ओके, नाउ द हार्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सन विल बीट 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये वही है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, बराबर है? सो दिस इज नोन एज द हार्ट रेट, एंड ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट द वेंट्रिकल विल पंप 70 ml of blood. Okay, so naturally it will be like 70 into 72, so it comes to around 5040 ml per liter. ठीक है, पर 5040 ml पर 5 लीटर्स, ठीक है, यानी इतना सारा ब्लड हम लोगों के हार्ट में सर्कुलेट होता है विद इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है। सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। यस, पूजा मैडम को पैनलिस्ट बना दिया गया है। ओके, ना अभी ना एग्जाम, ना दिस इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। ओके, 5 liters and 40 ml इट्स कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। मतलब हार्ट से कितना आउटपुट हो रहा है, कितना बाहर जा रहा है, सो दैट्स कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट, राइट? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है? अभी ना थोड़ा इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं इंफॉर्मेशन विच आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड नो। जस्ट अ सेकंड, आई एम एडिंग सम स्लाइड। हाँ, एक मिनट दिखा रहा हूं लास्ट स्लाइड। ये वाला हो गया? शेल्वी? नो सर। टुडे यू आर नॉट गिविंग टाइम फॉर राइटिंग। वाह, ऐसा कैसा? Done, sir. हाँ, हो गया श्रुति तेरा लिख के? तुति? हो गया सर। हाँ, हो गया। अच्छा, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर। नाउ वी आर हियर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द हार्ट बीट। ओके, अभी हार्ट बीट में ना 2 साउंड्स आते हैं, बराबर है? देयर आर 2 साउंड्स व्हिच वी हियर, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड का नाम, फिर उसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। वन इज कॉल्ड एज LUBB एंड द अदर वन इज नोन एज DUB, लब डब। स्पेलिंग में LUB की जगह LUBB लिखा है बिकॉज दिस साउंड इज कंपैरेटिवली प्रोलॉन्ग्ड एंड शार्प एंड लाउड साउंड। थोड़ा ध्यान दो इधर। दिस पर्टिकुलर साउंड यहाँ पे हम लोगों ने LUB इज ऑल्सो लब एंड LUBB इज ऑल्सो लब। एक एक्स्ट्रा भी इसके लिए दिया गया है बिकॉज दिस फर्स्ट साउंड विच वी हियर, दैट इज लब साउंड, इज गोइंग टू बी prolonged, little prolonged as compared to the second sound, and it's going to be sharp and loud. इसके लिए LUBB and the second sound is going to be dub. So lub dub, lub dub, lub dub, इस तरीके से साउंड आएगा। ओके, अच्छा, अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो अंदर कोई बैंड तो है ही नहीं हमारे हार्ट के कि ये साउंड प्रोड्यूस होगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये साउंड किस वजह से आता है। Okay, as I said, for heartbeat to continue, we require one systole and
one diastole. Correct? Correct? तो जैसे मैंने बताया था कि किसका सिस्टोल और किसका डायस्टोल लगेगा, तो यहां पे इट इज बोथ रिलेटेड टू द वेंट्रिकल्स, सो इट इज नोन एज ventricular systole and ventricular diastole. So whenever there is ventricular systole, it produces love sound, and whenever there is ventricular diastole, it produces dub sound. यहां तक ठीक? हेलो? Yes, sir. हाँ, अभी ध्यान दो इधर अच्छे से. हाँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग द टिपिकल डायग्राम ऑफ द हार्ट. नहीं समझा? सानिका घोड़के को नहीं समझा? सानिका घोड़के क्या नहीं समझा? आपने ये सेंटेंस लिखा, हार्ट बीट में वी नीड वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल. यस और नो? सानिका घोड़के, हाँ. तो कौन, किसका सिस्टोल और किसका डायस्टोल, ऐसा मैंने पूछा था, बराबर है? तो उसमें क्या होता है, व्हेन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तब क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड लव. और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? डब. क्लियर? ठीक है. मतलब हार्ट साउंड्स आर नॉट रिलेटेड टू एट्रिया, atrial contraction and relaxation, but heart sounds are related to ventricular contraction and relaxation. यहां तक ठीक सानिका घोड़के? सो गई? हेलो सानिका गायब हो गई शायद वो. चलो एनीवे, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर. सी आई एम नॉट ड्रॉइंग अ टिपिकल डायग्राम ऑफ द हार्ट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये एंटायर मैकेनिज्म कैसा रहेगा. सपोज दीज आर द टू एट्रिया, ठीक है, इनका ये वाल्व्स है ऐसे बीच में, राइट, और यहां पे नीचे है, दीज आर द टू वेंट्रिकल्स. ओके, नाउ थोड़ा ध्यान दो इधर. वी हैव, यहां पे वाल्व्स है, ये कौन से वाल्व्स है? These are which valves? Bicuspid. Bicuspid and tricuspid. This is right side, this is left side. So this one is the tricuspid and this one is the bicuspid, correct? Or mitral valve, correct? Bicuspid or mitral valve ना? Okay? चलो अभी यहां पे in the right atria, or rather from the right atria, there is one opening for a structure. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? Pulmonary trunk. Very good, sir. My side connection issue, that's why I couldn't. Voices break for my side. Okay, no problem. So यहाँ पे रहता है क्या? Pulmonary trunk. Pulmonary trunk का जो opening रहता है, उस opening पे, on that opening we have the valve, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Semilunar valve. Semilunar valve. So it is present on the pulmonary trunk, so called as pulmonary semilunar valve. और यहाँ पे we are going to have one more opening, a bigger opening like this. This is for the opening of aorta, and this particular opening will have their own valve. So this valve is known as what? Aortic semilunar valve. वेरी गुड. 4 वाल्व समझ में आ गए. मैंने पोजीशन देखो कैसे निकाला है. ये वाल्व्स ऐसे नीचे ओपन हो रहे हैं, बराबर, और ये दोनों वाल्व्स ऐसे ऊपर ओपन हो रहे हैं. यस और नो? Yes. गुड. नाउ whenever there is ventricular systole, मतलब क्या हो रहा है? मीनिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर? वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग. Contracting. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाना चाहिए? Pulmonary trunk. मतलब कैन आई से दैट इट विल एंटर लाइक दिस? Yes. Yes. अच्छा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाना चाहिए? Aorta. गुड. सपोज जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे उस टाइम पे, इफ दीज माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व दे रिमेन ओपन, will the blood be able to enter in the pulmonary trunk and aorta? No. No.
मतलब ब्लड किधर जाएगा वापस, एट्रिया के अंदर। एट्रिया। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नो। तो ये प्रिवेंट करने के लिए व्हाट हैपेंस, एट द टाइम व्हेन द वेंट्रिकल्स दे अंडरगो सिस्टोल, देयर इज सडन क्लोजर ऑफ द atrioventricular valves. So at the time when there is ventricular systole, there will be sudden and sharp closure of tricuspid and bicuspid valve. Are you getting this? This valve will suddenly close. Why? To prevent a backflow into the aorta. Oh, sorry, atria. बराबर? Yes, sir. बराबर. And this sudden closure of the valve will produce the first sound. इसकी वजह से पहला sound आता है. And the first sound which is produced here is known as LUBB. समझा? Yes, sir. तो मतलब हार्ट साउंड कौन कॉज कर रहा है? हार्ट साउंड्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द वाल्व्स. तो पहला हार्ट साउंड किसकी वजह से होगा? It will be because of the sudden and sharp closure of the tricuspid and bicuspid valve, which are also known as atrioventricular valve, because they are present between the atria and ventricles, so called as atrioventricular valve, which causes the first sound. And this closure will take place at the time when there is ventricular systole. यहाँ तक ठीक? Yes, sir. Good. आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ. Now, next. Again, take an example. अभी एक साउंड तो पता चल गया कि क्या आया. हाँ, 1-2 मिनट बुशरा रुक, पहले समझ ले बाद में लिखना. ओके, पहले समझ लो बाद में लिखो. अभी दूसरा साउंड देख लेते हैं. अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस 2 एट्रिया. ओके, ये 2 एट्रिया के ये बीच में ये वाल्व्स है, राइट? दिस इज 1 वेंट्रिकल, दिस इज अनदर वेंट्रिकल. क्या हुआ? तो ये वाल्व्स है ऐसे, ये बंद हो गए, बराबर है? ये भी बंद हो गया. तो पहला साउंड आया, बराबर? अच्छा, इधर एक ओपनिंग है और इधर एक ओपनिंग है. Now, what is happening here is, ये 2 valves ऐसे है. Now, what is happening here is, the ventricles, this is right side and this is left side. Now, there will be next mechanism which is known as ventricular diastole. बराबर? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब ventricular diastole takes place, meaning ventricles are now relaxing. Who is contracting? एट्रिया. Atria. और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो which valve will open? Tricuspid and bicuspid. Lovely. Tricuspid and bicuspid valve will open so that the blood will enter in the right and left ventricle. Correct? लेकिन इससे पहले ventricular diastole से पहले क्या था? Ventricular contraction, which has pushed this blood against the gravity like this. So when the ventricles they relax, there are chances that there will be backflow of the blood in the ventricles. Yes or no? Yes, sir. Correct. So we need to prevent this backflow of the blood while the ventricles are relaxing. So who is going to close? Pulmonary. So there will be sudden closure, may not be sharp, but sudden closure of semilunar valves, right? And this sudden closure of semilunar valves will produce the next sound, and that sound is known as dub. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. And this is how these 2 sounds are produced. So basically, sounds are produced because of ventricular systole and ventricular diastole. So when the ventricular systole takes place, at that time, there will be sudden and sharp closure of the mitral valve and tricuspid valve to produce the first sound called as love.
And when the ventricles then undergo diastole, that time there is sudden closure of the semilunar valve to produce next sound called as dub. And this is how लब डब ऐसा साउंड प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है. ठीक है, अभी इसको लिख लो. गुड. 8th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आया था, ऐसा अद्वय पूछ रहा है कि विच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द हार्ट, तो उसके फ्रेंड ने लिखा था धक धक. मेडिकल में हार्ट साउंड्स के ऊपर एक बड़ा सा हिस्ट्री है, यानी बहुत बड़ा ऐसा ये रहता है. मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो हार्ट साउंड्स के ऊपर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर कि कैसे प्रोड्यूस होता है. उसके ऊपर 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट आता है. तो आई यूज्ड टू चेक मेडिकल पेपर्स. ठीक है, मेडिकल कॉलेज में था मैं, तो उस टाइम पे आई वाज एन एग्जामिनर, सो आई यूज्ड टू चेक द पेपर्स. तो एक साल ऐसा क्वेश्चन आया था हार्ट साउंड्स के रिलेटेड. What are heart sounds and how the heart sounds are produced? Describe the mechanism and the role of cardiac muscles and the valves involved in it. तो डिटेल में रहता है, आप लोगों को इतना डिटेल में अभी है नहीं. तो उसमें एक बच्चे ने लिखा था हार्ट साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड. हार्ट साउंड्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसने लिखा था सारे ग म प ध नि सा, और पूरा गाना लिखा था उसने उसमें. ऐसे भी करते हैं लोग. एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट, है ना, अजब रहता है. चलो एनीवे, आप लोग ये लिख लो फटाफट. नहीं, बीएचएमएस का था वो गौरव. बीएचएमएस या बीएएमएस का था आई थिंक, आयुर्वेदिक का था शायद. ये लिख के हो गया. हाँ हाँ सब हो गए. सर 2 मिनट. हाँ हाँ. हो गया. चलो अब ये लिख लो. सर वहाँ पे सडन के बाद में क्या लिखा है? क्लोजर. क्लोजर, CLOSURE. ओके सर. ये देखो, अभी मेरे सामने अभी मेडिकल का फिजियोलॉजी का बुक है ना, तो उसमें हार्ट साउंड्स के लिए ऑलमोस्ट 3 पेजेस आर गिवन. लंबा चौड़ा है सब ये, है ना. तो उसमें ऐसा किया था. Three pages. This is the book which I have right now with me. This is Human Physiology. I don't know आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं. Human Physiology करके एक बुक है बाय चैटर्जी. ऐसे ही पढ़ते रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ. चलो आगे बढ़े. हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है समझा? बेसिक्स ऑफ हाउ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस. यस और नो? यस सर. यस सर. Good.
Now, if the heart rate is normal, heart rate is average is 72 per minute. This is average. Plus minus 10 here and there. Okay. तो 72 की जगह से 85 रहा तो भी चलेगा. 85 to 90 is acceptable. Beyond 90 it is not acceptable. But if the heart rate goes above 100 per minute, then it is known as tachycardia. है ना, दिल की धड़कनें बढ़ गई. So that's called as tachycardia. And if the heart rate is below 60 per minute, मतलब 72 है तो 72 minus 10 is like 62, तो 60. So the range is from 60 to 90. ठीक है, 90 के ऊपर ही टैकीकार्डिया होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 100 लिखा है, so that is fine. ठीक है, but if it is below 60, then it will be called as bradycardia. Okay, so tachycardia is increased heart rate which is above 100 per minute, and bradycardia is decreased heart rate which is below 60 per minute. So what causes bradycardia? there are many reasons. जैसे loss of volume, hypovolemia, diarrhea हो गया अगर पेशेंट को, severe diarrhea with the vomiting, so water loss will be there ना. Yes, sir. तो उसकी वजह से वॉल्यूम अगर कम हो गया तो उसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया आएगा. राइट, ब्लड लॉस हो गया फॉर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उसमें भी ब्रैडीकार्डिया हो सकता है. ओके सर, व्हेन वी रन आवर वर्कआउट our beat ranges to 150, so that yes, that's called as tachycardia. But that tachycardia is, Aditya, because of, it's a temporary condition, na? It is because of exercise, so it will come on normal to normal on its own. But in certain cases tachycardia becomes like becomes a sign of some disease. Okay, किसी बीमारी का हो सकता है, जैसे there is something called as ventricular fibrillation या फिर atrial flutter, जिसमें irregularity रहता है बीट का, and the number of beats they increase. अभी ventricular fibrillation नाम का एक बीमारी है, उसमें हार्ट रेट गोज मोर देन 200, 200 210 ऐसा हो जाता है हार्ट रेट. दैट्स कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर फ्लटर और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. ठीक है, दैट इज बेसिकली कंडक्टिव डिफेक्ट है. हाँ ओके सर. ब्लड प्रेशर बढ़ना या कम होना, इसको भी टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. वो अलग है. यहाँ पे हम लोग हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात नहीं कर रहे. ओके सर. डन, आगे बढ़े. यस सर. गुड. Now how the pulse is measured, तो ये आपने को पता ही है. So pressure, what is pulse basically? ये definition है, ये लिख लो आप, ये एकदम पोपट वाला definition है. So pressure wave that travels through the arteries after each ventricular systole. Ventricle जब contract होते हैं तो वो एओर्टा से ब्लड को पुश करते हैं, तो जैसे पुश करेंगे एक वेव आएगा ब्लड का, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा दूसरा वेव, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा तीसरा वेव. तो ऐसे वेव फॉर्म में एट्रिया में ब्लड इज फ्लोन. And these waves are detected at various levels in our body with the help of the finger. So that's called as the pulse. So usually pulse rate and heart rate corresponds with each other. तो जितना heart rate रहेगा उतना ही pulse rate रहता है, इतना याद रखो. ठीक है सर, अगर हार्ट बीट 100 हमेशा आ रहा है तो टैकीकार्डिया होगा, और अगर 100 से कभी कभी आया तो नहीं. जोया, इट इज नॉट लाइक दैट. जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एथलीट्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर हार्ट रेट, देयर ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज हाई, बट दैट इज नॉर्मल फॉर दैट पर्सन ना. गेट इन दिस? सो यू नीड टू ऑब्जर्व ना कि ये पेशेंट का ये नॉर्मल हार्ट रेट है कि ये अभी के लिए हुआ है और बाद में नॉर्मल आया. समझ में आ रहा है जोया? तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि व्हाट इज नॉर्मल एंड क्या होता है ना. टैकीकार्डिया है यानी पेशेंट का हार्ट रेट, पर्सन का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बट ही डजंट हैव एनी कंप्लेंट. अगर उसको कोई कंप्लेंट नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि दैट इज दैट पर्सन्स नॉर्मल हार्ट रेट, व्हिच जनरली हैपेंस इन एथलीट्स. एथलीट्स में ये होता है, वेरी कॉमन कंडीशन. ठीक है जोया? यस सर. हाँ चलो गुड. जोया, आप वही हो ना, इंदिरा नगर में रहते हो ना, फ्रंट बेंच पे बैठते हो? यस. तो उधर बात नहीं करते हो और इधर इतनी बात करते हो हमारे साथ.
वहां पे एकदम शांत बैठे रहते हो, है ना। चलो, दिस कैन बी फेल्ट एट एनी आर्टरी दैट लाइज नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, कॉमनेस्ट इज रेडियल आर्टरी, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रेडियल आर्टरी इज द कॉमन आर्टरी जहां पे ये दिया हुआ। हाँ बराबर है, सफराइजिंग वहां पे मैं बोलती हूँ। दिस इज, फिर यहाँ पे रहता है एक आर्टरी इधर सर के इधर, सो देयर इज वन आर्टरी विच इज प्रेजेंट हियर। ब्रैकियल आर्टरी इज नियर दी आर्म, फोर आर्म और आर्म के बीच में जो जॉइंट होता है, तो वहां पे ब्रैकियल आर्टरी होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल आर्टरी, इधर रहता है साइड में, सो दैट्स कॉल्ड एज द टेम्पोरल आर्टरी। ओके, इधर रहेगा तो ब्रेकियल आर्टरी विच इज एट द जॉइंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म के जॉइंट के बीच में रहता है, राइट। यहाँ पे रहता है कैरोटिड आर्टरी, तो इधर से भी पल्स आप ले सकते हो, इधर से या फिर इधर से, राइट और लेफ्ट कैरोटिड। मैंने डायग्राम आपको बताया था कैरोटिड आर्टरीज का कैसा एक्सटेंशन रहता है, तो ये वाला। सो यहाँ से भी आप पल्स कर सकते हो, या फिर पैर के इधर रहता है, दैट्स कॉल्ड एज पेडल आर्टरी। हमारा जो ये रहता है ना एंकल जॉइंट, तो वहां पे रहता है, सो दैट्स कॉल्ड एज पेडल आर्टरी। तो अलग अलग जगह से आर्टरी की मदद से यू कैन मेजर द पल्स। सुपरफिशियल जनरली नहीं होता है, दीज आर द फ्यू आर्टरीज विच आर सुपरफिशियल, नॉट ऑल। हो गया। फिनिश्ड। चलो, गुड। Now, pulse rate indicates the exact heart rate. जो मैंने बताया, it corresponds with this. So the pulse rate is the same as that of the heart rate. Because it is, जितना heart rate रहेगा उतना ही pulse rate रहेगा, क्योंकि जितनी बार हार्ट पंप कर रहा है उतनी ही बार पल्स आपको फील होगा। कौन सा स्लाइड चाहिए लोहिता? ये वाला ले ले। हो गया सर। हो गया, ओके ओके। चलो, सो पल्स रेट विल ऑलवेज करस्पॉन्ड विद द हार्ट रेट। ठीक है ना। पल्स रेट इज हायर इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। फीमेल्स में यूजुअल इट इज हाई, लिटिल हायर ऑन द हायर साइड। स्टैंडिंग पोजीशन, जब आप खड़े रहते हो तो उस टाइम पे पल्स रेट थोड़ा हाई रहेगा, एंड इट इज लोअर इन केस ऑफ एडल्ट्स, इन केस ऑफ मेल्स, एंड व्हेन यू आर इन अ लाइंग पोजीशन। ठीक है, ये नेचुरल नॉर्मल है। हाँ, लेकिन ये दिस इज नॉट समथिंग विच इज एबनॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशंस है। वी आर नॉट डिस्कसिंग डिसीजेस हियर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जैसे जोया ने पूछा था ना, वैसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके जनरली ये देखा गया है कि फीमेल में, चिल्ड्रंस में स्टैंडिंग पोजीशन में पल्स रेट विल बी हाइयर। मतलब कैसा, 72 की जगह 80 रहेगा, 82 रहेगा, 86 रहेगा, इस तरीके से। नॉट टैकीकार्डिया, बट पल्स रेट विल बी हाई, समझा। 72 के ऊपर रहेगा, लोअर 60 के ऊपर रहेगा, जैसे 62, 65 ऐसा रहेगा, या फिर एग्जैक्ट 60 रहेगा। जनरली लोअर इन एडल्ट्स, मेल्स एंड लाइंग पोजीशन। ओके, so that is a normal situation. So it increases in emotional stress state, that is anger, fear, excitement, and during exercise. एक्सरसाइज के टाइम पे भी ये बढ़ता है। फीमेल में इसलिए होता है बिकॉज फीमेल में जनरली हीमोग्लोबिन काउंट कम होता है ना, सो दैट एड्स अप द प्रेशर ऑन द हार्ट, तो उसकी वजह से हार्ट एक्टिविटी नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेयर टू मेल्स। Sir, adults is senior citizens or only adults? No, senior citizens, adults below 60. Okay, sir. हो गया। अच्छा, मैंने बोल दिया सर व्हाई दिस डिफरेंस वगैरह वगैरह, आपने पूछा था करके। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए संजीवनी आपको? इसके पीछे का ये मैंने बोल दिया ना आपको, डायरेक्ट लिख दो, पल्स रेट करस्पॉन्ड विथ हार्ट रेट, खत्म।
इतना ही लिखने का संजीवनी, शॉर्टकट मारो। फिनिश्ड। चलो हार्ट रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज द रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट। किस तरीके से रिदम मेंटेन होता है। जो रिदम आप लोगों ने बताया ना, अल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस, लब डब साउंड होता है प्रोड्यूस, है ना। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, so that's called as the rhythmicity। मिनल हो गया? Yes, sir. ओके, तो ये रिदमिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस रिदमिसिटी इज। सो द rhythmic contraction and relaxation of the heart is called as the heartbeat, and heart definitely shows auto rhythmicity। when I say auto rhythmicity मतलब क्या, ये अपने आप चलने वाला रहता है, it is involuntary in nature ना, so it is not under our control। so once the beat starts it will continue in that rhythmic fashion only, so this rhythm should not change। जब कभी भी ये रिदम चेंज होता है तो दैट टाइम द पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम द डिसीज, तो उसको बीमारी आना चालू हो जाता है। ठीक है, सो वी कॉल दिस एज ऑटो रिदमिक टाइप ऑफ अ हार्ट। ठीक है, बट ऑफ कोर्स कंट्रोल मेडुला के साथ होता है, तो वो कंटिन्यूस स्टिमुलस भी आते रहेगा, तो वो स्टिमुलस भी इसी तरीके से आता है दैट द रिदम विल बी मेंटेन्ड। और कभी कभी रिदम बिगड़ गया फॉर सम रीजन, तो उसकी वजह से आते हैं बीमारियां, जो मैंने अरिथमिया का बात किया था, या फिर फिब्रिलेशन, फ्लटर की बात कर रहा था मैं, वेंट्रिकल एट्रियल का, तो वो वाला। ठीक है, तो वहां पे आपका रिदम बिगड़ जाएगा। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट some of the cardiac muscle fibers they become auto rhythmic। ठीक है, and then they start and they generate the impulses। so this is what happens during embryonic stage। ठीक है, not all but some of the cardiac muscle fibers will start becoming auto rhythmic। ठीक है, फाइन हो गया। बुशरा लास्ट स्लाइड भी हो गया तेरा। मिनल चाहिए लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। Finished? Done, sir. Okay. Now, this is important. Autorhythmicity develops, sets in during embryonic stage because some cardiac muscle fibers will start generating the impulses। अरे आदित्य कहाँ चला गया था? डिस्कनेक्ट। Sir, I was disconnected। Yeah, I know। चलो लिख लो। अभी किसको? शिखू, तू भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। मास्टर शिखू, मास्टर शिखू। हाँ, ऑटो रिदमिक मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, सो इट डजंट रिक्वायर एनी कंट्रोल, और वो अपने आप रिदम सेट हो जाता है। जो टिपिकल रिदम होता है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, तो ये जो रिदम डेवलप होता है दैट्स कॉल्ड एज ऑटो रिदम। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोमेटिक। श्रावणी, श्रावणी, मेडुला का सपोर्ट लगता है तो रिदम सेट करने के लिए वो तो स्टिमुलस चाहिए ना, तो वो स्टिमुलस विल ओनली हेल्प इन सेटिंग दैट रिदम, लेकिन वो अपने आप ही होता है ना, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, वो इनवॉलंटरी रिदम है वो। श्रावणी, जैसे ब्रीदिंग इज नॉट रिदमिक बिकॉज वी कैन कंट्रोल। नॉर्मल ब्रीदिंग जब होता है तब वो रिदमिक होता है, लेकिन हम लोग अगर चाहे तो उसको रोक सकते हैं, हम लोग चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अंडर आवर कंट्रोल। श्रावणी,
ठीक है, चल. Sir, in embryonic stage, blood is given to baby by mother, which is oxygenated. No, blood is not given to baby from the mother. It is just that the exchange of gases, exchange of nutrients, and exchange of excretory waste will take place between mother's blood and fetal blood. Blood will never be transferred from mother to the child. Correct? बच्चे का, बेबी का लीवर अपने लिए ब्लड बना रहा है. हाँ, गुड. चलो. Now, autorhythmicity will be maintained with the help of this structure known as the pacemaker, which is basically the one which is going to set the rhythm of the heart for the heart, and the pacemaker of the heart is going to be your SA node. Whereas the conducting system, the one which conducts the impulses throughout the heart muscles, okay? So that is also responsible for setting the auto rhythm. So there is something called as the pacemaker, okay? That is going to be your SA node, and then there is something known as the pace setter of the heart. So pace set करने वाला कौन रहेगा? That's going to be atrioventricular node. Correct? So one is going to be your pacemaker, another one is going to be your pace setter. But sir, when baby is not fully developed, the baby को blood कैसे मिलता है? ऐसे कैसे? Baby is not fully developed मतलब क्या? Liver is already developing ना? Initial phases में ही liver develop होना चालू हो जाता है, and the liver starts producing blood cells. और हार्ट भी 21 डे के टाइम पे बन जाता है, लीवर भी उसी टाइम पे बनता है. ओके सर, एक्सटर्नल पेसमेकर, ये एक्सटर्नल पेसमेकर भी होता है. करेक्ट. तो एसए नोड में प्रॉब्लम आता है करके एक्सटर्नली पेसमेकर बिठाया जाएगा. When there is issue with the SA node, मतलब SA node क्या करता है ना, कभी कभी एक आध बिट मिस कर जाता है, या फिर there will be excess bit. तो वो बीट जो मिस हो गया तो रिदम खराब हो जाएगा, बीट अगर एक्स्ट्रा आ गया तो रिदम खराब हो जाएगा. तो ये जो पेसमेकर हम लोग एसए नोड के अंदर डालते हैं, दैट मेंटेन्स दैट रिदम. तो कभी अगर हार्ट बीट मिस हो गया तो वो मशीन बीट को डालेगा, अगर हार्ट बीट अगर एक्सेस हो गया तो उसको रोकने का काम करेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज सीन. Autorhythmicity is maintained with the help of pacemaker and conducting system. So pacemaker is the one which sets the rhythm for the heart, which is in our heart called as the SA node, and conducting system is the one which carries impulses throughout the heart muscle. जो हमने पढ़ा है कि SA node से AV node, तो यहाँ से सारे impulses जाएंगे एट्रिया को, कुछ impulses आएंगे AV node में, AV node से जाएगा बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से जाएगा पुरकिंजे फाइबर में. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम. करेक्ट. एंड इन दिस कंडक्टिंग सिस्टम वी हैव द AV नोड व्हिच इज कंसीडर्ड एज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट. ठीक है जोया? यस, आर्टिफिशियल पेसमेकर का एक वायर रहता है एसए नोड के अंदर, और इट इज इम्प्लांटेड अंडर द स्किन इन द चेस्ट रीजन, which has the lithium का ही बैटरी रहता है. जैसे हमारा इसका बैटरी रहता है ना मोबाइल का, वैसे ही बैटरी रहता है, लेकिन वो बैटरी का लाइफ स्पैन रहता है 3 to 5 years. तो 3 या 5 साल में आपको वो बदलना पड़ता है. यस, करेक्ट सानिका वालिम्बे, एंड इट डेफिनेटली वर्क्स. इट्स फैंटास्टिक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. I know श्रावणी. पेस मतलब रिदम नहीं रही, पेस मतलब स्पीड, एंड नेचुरली रिदम सेट करने में स्पीड भी इंपॉर्टेंट है ना. अमन, हो गया? ठीक है. सो कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. सबसे पहला आएगा एसए नोड, देन कम्स द एवी नोड, then we have bundle of his, and then we are going to have bundle of his will have right and left bundle branches, and then it will give or it will carry this impulses through Purkinje fibers to the ventricles. ठीक है. तो ये टिपिकल कंडक्टिंग सिस्टम के
components है. So as you can see here, stimulus reaches SA node से AV node से bundle of his से Purkinje fiber. So this is how the contraction and relaxation will take place. So excitation begins in the SA node. Wait, पहले ये समझ लो. Excitation begins in the SA node, which is therefore called as the pacemaker. From SA node, the impulses will spread to throughout atria, causing contraction. तो यहां से जाके वो इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे पूरा वो स्प्रेड हो जाएगा एट्रिया में, so that the atria will contract and some of the impulses will reach to the AV node. From AV node, they are carried through the bundle of His, right and left bundle branch, and then from there it goes to the Purkinje fiber. The moment the impulse reaches Purkinje fibers, the ventricles will contract. Okay, so this is how the rhythm will be set. Sir, I saw in a documentary there were Purkinje cells in cerebellum. Okay, वो अलग है गौरव. That is different concept altogether. ठीक है, वो वाले cells और ये वाले fibers अलग है. उसका फंक्शन अलग है पुरकिंजे सेल्स का. हाँ, अच्छा, पुरकिंजे मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम से ही दिया हुआ है. Now, impulses travels from AV node to the bundle of His, okay, and from bundle of His, naturally right and left bundle branches है, so they will reach to the Purkinje fibers, which are located in the walls of the ventricle, causing ventricular contraction. तो इसकी वजह से ventricular contraction होता है. ठीक है, so this is how the entire mechanism will be seen. हाँ, एक मिनट रुको, पहले ये समझ लो, बाद में लास्ट स्लाइड करो. पहले समझ लो. सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर. ये कौन सा स्लाइड चाहिए बोलो? ये वाला, कंपोनेंट्स वाला. हाँ सर. ये ना? Okay, next please. ऐसे नोड एट्रियम को रिलैक्स नहीं करता है वैष्णवी. ऐसे नोड से जो इंपल्सेस जाते हैं वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. So nodes will never relax. डन? सानिका क्या हो गया? आपको जल्दी जाना है? सानिका, 6:30 is the time for this lecture. चलो आगे.
ये लो लास्ट स्लाइड, जल्दी लिखो, लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड। हार्ट रिप्लेस करते समय एक्साइटेशन चाहिए रहता है, बट द कनेक्शंस आर सेट नेचुरली। ओके लोहिता, तो आपको अलग से Yes, उसको sir. कुछ करने की जरूरत नहीं सर पड़ती। नहीं मतलब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डालेंगे तो दूसरे बॉडी में वो अपने आप एक्साइटेशन शुरू कर देगा। हाँ, आप अगर नर्व्स को कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना पड़ता है नर्व्स। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, श्रुति अभी बोर हो गई। क्या 4-4.5 घंटा पढ़ते हो तो थक जाते हो रे बूढ़े लोग। बड़बड़ तो मैं ही कर रहा हूँ 4 घंटे से। हाँ, थोड़ा गॉसिप मारते, फटके दूं क्या? मैं सिर्फ मारता हूँ, मैं गॉसिप नहीं मारता हूँ। आता हूँ औरंगाबाद, फिर देखना ऐसे पिटूंगा ना मैं तुझे। डन। बायो सर। सर यूज मारो हे। हाँ करता हूँ। हाँ, कभी कभी अब बुरे जोक्स भी मारता हूँ, बराबर, मेरे जोक्स बुरे ही होते हैं। अरे यार, चलो ये हो गया हमारा रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट। ओके, ब्लड प्रेशर अभी नहीं पढ़ना चाहिए, रुको 1 मिनट। ब्लड प्रेशर अभी नहीं पढ़ते। ब्लड प्रेशर हम लोग बाद में पढ़ते हैं। मुझे याद दिलाना, ब्लड प्रेशर पढ़ना है अपने को। अरे ईसीजी किधर गया यार? ईसीजी नीचे गया। शट अप, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। तुझे क्यों अनन्या? चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। मैं जानबूझकर ईसीजी पहले ले रहा हूं, बाद में ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वेसल्स पढ़ने के बाद या फिर ब्लड प्रेशर इसके बाद लेते हैं, और उसके बाद फिर डिसीजेस एंड देन विल गो टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है? अच्छा, अभी मैंने जानबूझकर ये ईसीजी लिया है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, ECG is what? It is nothing but electrocardiogram. Okay, now what it is? A graphic record of electrical variations produced by the heartbeat of cardiac cycle. कार्डियक साइकिल में जो भी इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, दे आर डिटेक्टेड एंड प्लॉटेड इन अ ग्राफिकल मैनर, सो वी कॉल दिस एज द ECG. And of course, the instrument which is used to record action potentials generated by the heart muscles is known as electrocardiograph. Instrument is electrocardiograph. ECG मतलब electrocardiogram. ग्राम और ग्राफ में फर्क है। डिस्कवर्ड बाय दिस साइंटिस्ट जिनका नाम है एंतोवान। ठीक है, एंतोवान नाम के साइंटिस्ट ने 1903 में सबसे पहली बार डिस्कवर किया। इसके लिए ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के पप्पा, ऐसा इनको बोला गया है। ठीक है, सो फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज डॉक्टर एंथोवान। प्लीज राइट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ।
डन. डन सर. नो सर. हाँ लिखो लिखो. हो गया. नो सर, 2 minutes. सर मुझे ईसीजी ग्राम और ग्राफ में डिफरेंस नहीं समझा. अरे ईसीजी का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हाँ. जो ऊपर का ब्लू वाला डेफिनेशन है. और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जहां पे ये पूरा रिकॉर्डिंग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. यस सर. So, हम्म. sir, so what is ventilator? Means, वो कहाँ चली गई तू? कौन बोल रहा है? sir, Bhakti. सर भक्ति. सर भक्ति आप थोड़ा बाद में बात करेंगे वेंटिलेटर के बारे में, बिकॉज वेंटिलेटर इज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. Okay, sir. हाँ, I thought- हार्ट का सपोर्ट नहीं, उसको हार्ट का वहां पे हार्ट का सपोर्ट नहीं रहता है, बट बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग ना, तो इट इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द हार्ट. Okay, sir. Got it. ठीक है. सो वेंटिलेटर इज कंप्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म. बताऊंगा मैं, बट नॉट नाउ. एंड ऑफ द लेक्चर या कभी टॉपिक खत्म होने को आया तो उस टाइम पे याद दिलाना, मुझे बता दूंगा. नाउ अब ये सारे लीड्स होते हैं जो हम लोग अटैच करते हैं, बिकॉज वी आर हिज नेम, सानी का फादर का नाम है एंथोवेन और एंथोवान, EINTHOVEN, 1903. Sir, then what is those two things which give shock? That is called as defibrillator. ओके. उसमें क्या होता है ना, वो हार्ट को एसए नोड और एवी नोड की तरफ, यानी या तो फिर एसए नोड को स्टिमुलेट करने के लिए और वेंट्रिकुलर टिप, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एपेक्स होता है ना, उसको स्टिमुलेट करते हैं, सो दैट द वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया तो ऐसा हो सकता है कि एक बार स्टिमुलस आ गया, रिदम सेट हो गया, हार्ट विल स्टार्ट वर्किंग. ऐसा है क्योंकि ऑटो रिदमिसिटी है ना, इसके लिए. Okay, now as you can see in this diagram, there are leads which are attached, right? So the electrical activities of the heart are recorded on ECG machine by placing 2 electrodes at various locations on the body. ठीक है, अलग अलग जगह पे ये पूरे इलेक्ट्रोड्स अटैच किए जाएंगे. 2 electrodes are connected to the chest of the patient above the heart. Okay, 3 electrodes is a reference connection connected to the upper and lower limbs. तो अगर आप देखोगे तो इधर 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 और इधर, तो उसमें से एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो अर्थिंग का काम करता है, तो ये वाला अर्थिंग रहता है ना, अर्थिंग देते हैं ना हम लोग तो वायरिंग के लिए, तो वैसा. और दिस वन इलेक्ट्रोड, दिस सेकंड इलेक्ट्रोड एंड दिस थर्ड इलेक्ट्रोड विल बेसिकली वर्क एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, रेफरेंस कनेक्शन. Okay, and a conducting gel is applied between the skin and the electrodes to detect tiny impulses of few millivolts. If you remember, मैंने बताया था ना, -70 to -90 millivolts is the voltage of our neurons. Okay,
हाँ, ये जरूरी है लिखना सब कुछ बुशरा, क्योंकि ये टेक्निक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 इलेक्ट्रोड्स हार्ट के ऊपर है, 4 इलेक्ट्रोड्स आर दे आर अटैच्ड बिलो द हार्ट नियर द वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे 6 इलेक्ट्रोड्स हम लोगों ने चेस्ट पे लगाए हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स आर्म पे है, अपर आर्म, एंड 1 ऑन द लोअर, 1 ऑन द लेग, that is especially the left leg, and the one which is on the right leg is basically a earthing. ठीक है? Yes, श्रावणी, करेक्ट। ऐसे 3 हुए, लेकिन एक्चुअली कितने आएंगे? 6 + 3 9। तो अगर आप ईसीजी का पट्टी देखते हो ना, तो उस पे ऐसे 1 2 6 ऐसा एक आता है, और उसके बाद आता है AVR, AVL, AVF, ऐसे आता है। ठीक है? 6 + 3 9, तो ऐसे 9 अलग अलग रीडिंग्स आते हैं। इज इट क्लियर? नहीं, वहां पे उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिखा है विच आर प्लेस्ड वेयर, which are placed at various locations on the body, placing 2 electrodes. उसमें से ये जो रहता है ना, this is how the activity will be seen, क्योंकि वो 2 electrodes important है ना, the one which is placed above the heart. ठीक है? Get in this, तो वो ज्यादा जरूरी है। वो मैंने नाम लिखा है, that is how electrodes are detected ना। तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड लेग्स का है ये, एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिटेक्ट करने के लिए। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड फुट, F stands for foot and AV stands for atrioventricular stimuli. हो गया? नहीं सर। No, आदित्य, that is not really reliable. ठीक है? एकदम टिपिकल रिलायबल नहीं होता है, बिकॉज इट वोंट गिव यू करेक्ट रीडिंग, राइट? लेकिन एक अंदाजा आ सकता है कि कुछ तो तकलीफ है, लेकिन वो नॉर्मल भी हो सकता है, सो यू कैन नॉट डायग्नोज एनीथिंग फ्रॉम दैट। फिनिश्ड? एक वाला राइट लेग का अर्थिंग के लिए होता है, लेफ्ट लेग का डिटेक्ट करने के लिए होता है, थर्ड इलेक्ट्रोड। So AVR will give in reading from the right arm. AVL will give reading from the left arm, and AVF will give reading from the left foot. और 1 से 6 चेस्ट का रीडिंग्स है। उसमें से अपर चेंबर, अपर हार्ट के ऊपर जो 2 लीड्स होते हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट। इसके लिए वो 2 इलेक्ट्रोड्स लिखा है उन्होंने। ठीक है? हो गया? Done, sir. हाँ, ओके। अभी जब ये पूरा अटैच हो जाएगा, ये सारे लीड्स अटैच हो जाएंगे, जेल हम लोग लगा देंगे, जेल के ऊपर फिर ये लीड्स अटैच करेंगे, सो दैट द जेल विल हेल्प इन catching these minute impulses which are coming in, and the entire graph will be plotted on the x and y axis. So x axis will denote the time and y axis will denote the voltage. तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है? So this is time and this one is the voltage. तो आपको ये ECG ऐसे दिखेगा. So the normal ECG is a series of ridges and furrows. So it appears like this. ओके, तो ये आपका नॉर्मल ECG है। अच्छा, ये जो स्क्वायर्स होते हैं ना, ये जो एक स्क्वायर होता है ना, दिस 1 स्क्वायर इज ऑफ 1 mm,
तो ऐसे कितने स्क्वायर्स है? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही रहता है। एक्चुअली 5 5 रहता है, पता नहीं 4 क्यों है। 5 स्क्वायर्स का एक पूरा स्क्वायर आता है, मतलब दिस इज लाइक ये पूरा जो स्क्वायर आता है वो 5 छोटे छोटे स्क्वायर्स का आता है। सो इट इज लाइक 5 by 5 mm. So that is also important while we are calculating, क्योंकि यहाँ पे ना this will become your baseline. ये आपका बेसलाइन है, बराबर। ये ग्राफ पेपर की तरह होता है। So ये आपका बेसलाइन है। So anything above graph baseline is positive and anything below the baseline is negative. तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग में ये वाला एक वेव, ये वाला एक वेव और ये वेव पॉजिटिव वेव होते हैं, और ये वाला एक वेव और ये वाला एक वेव निगेटिव वेव्स होते हैं नॉर्मल। नो नर्वस सिस्टम विल, ये नर्वस सिस्टम का ही तो है ना रे बाबा, इम्पल्सेस ही है ना वो, तो नर्वस सिस्टम का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि डिटेक्ट हो रहा है फ्रॉम द चेस्ट लीड्स ना डायरेक्टली, इसके लिए। और एवीआर एवीएल एफईएफ इज कंट्रोल। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो है ना दिस इज बेसलाइन। बेसलाइन के ऊपर जो वेव आता है वो पॉजिटिव वेव होता है, बेसलाइन के नीचे जो वेव आता है वो हमेशा कर्सर वेव रहता है, निगेटिव वेव रहता है। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल ईसीजी है। ओके, नाउ देयर आर वेव्स व्हिच आर फॉर्म्ड हियर, मैं इधर ही लिख देता हूं। ये जो वेव आता है ना पहला वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पी वेव। यहां पे रहता है क्यू वेव, आर वेव आ गया नीचे। ओके सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट। ये है आपका ये सेस, ये ड्रॉ कैसे करना है मैं बोलता हूं आपको। दिस इज नॉर्मल बेसलाइन। ओके, सो दिस इज पी वेव, नीचे आ गया आपका क्यू वेव, फिर ऊपर आया आर, फिर नीचे आया एस और फिर आया टी। सो इट इज नोन एज पी क्यू आर एस टी। तो उसमें से क्यू एंड एस वेव इज नेगेटिव, पी आर एंड टी आर पॉजिटिव वेव्स। तो आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे? तो ड्रॉ करने के लिए यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज पी वेव लाइक दिस, फिर आगे चल के फिर नीचे से क्यू वेव, फिर ऊपर आ गया आपका आर वेव, फिर वापस नीचे आया एस वेव, फिर इधर आया टी वेव लाइक दिस। तो आप देखोगे ना तो टी वेव का डिस्टेंस ज्यादा है और पी वेव का डिस्टेंस कम है। आर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बराबर। वोल्टेज समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. yes you have to draw these. So ये P wave, ये Q wave, ये R, ये S, ये T. This is normal ECG. जब आप मेडिकल में जाने के बाद 1000 या उससे ज्यादा नॉर्मल ईसीजीज पढ़ पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे, तब जाके आप एबनॉर्मल ईसीजीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट इजी। कर लिया ड्रॉ? ये जैसे मैंने साइड में ड्रॉ किया वैसा ड्रॉ करो, ये वाला नहीं किया तो भी चलेगा। हाँ, सानिका को सबने मैसेज किया है, सर ऑल स्टूडेंट्स आर टायर्ड नाउ। सानिका घोड़के की बात कर रहा हूँ, वाड़िम पे नहीं। Sir, यस sir, so the normal ECG have the same pattern? यस, हर एक इंडिविजुअल का नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न ऐसा ही रहेगा जो डायग्राम में है, सेम। वैष्णवी आंसर, वैष्णवी नहीं पूछा ना ये क्वेश्चन? No, sir, Bhakti. भक्ति ने पूछा। ओके, वैष्णवी ने लिखा था, क्योंकि ये ईसीजी किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं डिटेक्ट होता। ये पैटर्न सिर्फ ये पैटर्न ही बनाने, यानी ये मशीन ही इस पैटर्न के लिए बना हुआ है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा, अभी इसको और कहाँ आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो? आईसीयू में भी आपने मशीन देखा होगा ना, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें टीक 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 आवाज आती है। सो दैट आल्सो डिटेक्ट्स द सेम, करेक्ट?
लेकिन इट इज ऑल्सो एन ईसीजी ओनली, लेकिन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ यानी फर्दर एडवांस्ड वर्जन है वो उसका, करेक्ट, जहां पे आपको डायरेक्ट स्क्रीन में ईसीजी दिखाई देगा, प्रिंट नहीं आएगा लेकिन स्क्रीन में दिखाई देगा। सर आपने हाँ। बोला कि इसमें जो ग्राफ बना है वो हर पर्सन के लिए सेम रहेगा, पर जो हमने आईसीयू में देखा है वो हार्ड चेंज होता रहता है ना। क्योंकि आईसीयू में ऐसा हो सकता है कि वो पेशेंट की बीमारी ऐसी हो जिसकी वजह से ग्राफ चेंज हो रहा है, तो बीमारी देखनी पड़ेगी ना, तभी तो आईसीयू में है। ये तो मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ ओके सर। हाँ, ये इसके लिए इलेक्ट्रोड्स अटैच करना कंपलसरी है श्रावणी। इलेक्ट्रोड्स अटैच नहीं करेंगे तो इंपल्स आएगा कहाँ से, डिटेक्ट कैसे करेंगे, मशीन को कैसे पता चलेगा ना हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो जो आईसीयू में मशीन लगाते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोड्स अटैच करने ही पड़ते हैं, ठीक है। चलो, अभी पी वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। सो द पी वेव इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंपल्स जनरेटेड एट द एसए नोड। और एसए नोड जब इंपल्स जनरेट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, एट्रिया का। सो बेसिकली देयर इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, so this causes atrial depolarization resulting in atrial contraction. Atrial depolarization मतलब क्या, the SA node will transmit this impulse to atria, और जब ये एट्रिया को impulse transmit होता है मतलब depolarization जब होता है तो that time the atria will start contracting and atrial contraction will produce the first wave that's called as the P wave. पहले ये लिख लो। So this is how the P wave will be produced. समझ में आ रहा है सबको, मतलब P wave is an indication that the stimulus has started. So that is the beginning of the stimulus. Yes, Aman. अमन, तेरे सर पे अगर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए तो तेरा सर फट जाएगा, कुछ भी पूछते रहता है। कौन सा स्लाइड चाहिए आदित्य, ये वाला, फोटो निकाल इसका। हो गया आदित्य, कुछ नहीं अमन, ऐसे कुछ भी सवाल नहीं पूछने का, ये मशीन उसके लिए बना ही नहीं है ना। दिस इज ओनली टू डिटेक्ट द हार्ट stimulus of the heart. P wave is clear? P wave is clear? चलो, अभी आ गया QRS कॉम्प्लेक्स। ये तीनों साथ में आता है। तीनों साथ में क्यों आता है? So here there is it begins as a downward deflection, बराबर है। It's going to begin as a downward deflection. P के बाद नीचे Q, फिर ऊपर R, फिर वापस S. So it's going to form the QRS complex. Last slide, ये देखो, last slide. हो गया? गुड, थैंक यू। फोटो ले लिया, नाइस। लोहिता डन ना? लोहिता Yes, sir. हाँ। Okay, QRS complex again begins as a downward deflection, continues as a large upright triangular wave जिसमें amplitude बहुत बड़ा है, and then again ends with the downward wave. मतलब starts with downward wave, ends with the downward wave. So negative wave से शुरुआत, negative wave से end. हेलो, ये कौन है? सॉरी सर, वो गलती से हो गया। कौन था? सृष्टि, पता नहीं कौन था। एनीवे, सो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, लोहिता, फाइन। Now this represents the spreading of the impulse from SA node to AV node and then to bundle of His and Purkinje fibers. मतलब क्या हो रहा है, जब SA नोड से AV नोड में आएगा और AV नोड से बंडल ऑफ His से पुरकिंजे फाइबर में आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, यस और नो। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया क्या क्या होगा,
there will be atrial diastole. तो मतलब QRS complex will be produced because of ventricular systole and atrial diastole. Is it clear? P wave will be produced because of atrial systole, right? तो वो P wave produce करता है. QRS complex will be produced because of ventricular systole and atrial diastole. Is it clear? मतलब एट्रिया का सिस्टोल हुआ, एट्रिया का डायस्टोल हो गया, मतलब एट्रिया का काम खत्म. यस और नो? यस सर। अभी sir. बचा कौन है? वेंट्रिकल. वेंट्रिकल का क्या हुआ है यहाँ पे? सिस्टोल, जिसकी वजह से कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? QRS. अभी वेंट्रिकल का आगे क्या होगा? Diastole. तो डायस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा तो कौन सा वेव प्रोड्यूस होगा? P wave. वेरी गुड. और वेंट्रिकुलर डायस्टोल विल टेक लॉन्गर टाइम. यस और नो? Yes. And that is why this T wave is going to be a prolonged wave. समझा? Yes, sir. Good. चलो ये लिख लो, इसके बाद T wave आएगा. So it causes ventricular depolarization resulting in ventricular contraction, but simultaneously there will be ventricular atrial relaxation. ठीक है, ये पॉइंट लिखना जरूरी है. यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, but we have to write this. Oh, hey, the boys and the girls. Hello. सब सो गए क्या? नहीं सर, बाकी लिखना. Good. 15 students are gone out of meeting. हो गया? ओके. तो लास्ट वाला पॉइंट तो आपने मुझे बोल ही दिया, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. टी वेव, इट्स अ ब्रॉड अपवर्ड वेव and it is basically represents the ventricular relaxation, that is ventricular diastole. समझा? डन? सर लास्ट स्लाइड. कौन सा लास्ट स्लाइड? डन सर। ये यस सर. फिनिश्ड? सोम हो गया क्या? यस सर. चलो, दिस इज ऑल्सो डन. यस सर। Good. यस सर. So this will complete our important part of the ECG. Okay. अभी आगे का जो पार्ट है, इंपॉर्टेंस क्या होता है और किस तरीके से एबनॉर्मल ECG आते हैं, फिर उसकी वजह से हार्ट डिजीज कौन से होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. ओके, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर. थैंक यू सर। Good night, sir. निकालने के बाद हाय सर। क्या? बाय सर। Thank you so much. हाँ, चलो बाय बाय बाय. ठीक है. रोमियो इज गुड. बुशरा, थैंक यू. रोमियो बच गया बेचारा, उसको ये नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है. सर, पी वेव एंड टी वेव में यही डिफरेंस है कि वेव इज मोर. हाँ बराबर. श्रावणी बोलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. स्प्रेन निकला, नथिंग एल्स. थैंक यू. बाय बाय. बाय सर. यस, बाय बाय.